So today what we do, I'm showing you how to write test scenarios and test cases in the test case development phase. So you have get the idea how in industry we write the test cases and test scenario for testing any application in testing phase. So first you have to write the test scenario and test cases for testing any application functionality. So you know about it. What is test scenario? Okay. So, what is test scenario? A test scenario can be defined as a top view of functionality under test or what is needed to test at high level. आपको कोई एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है तो आपको उसका हाई लेवल आइडिया होना चाहिए कि हाउ इट्स गोज, इसका फंक्शनल फ्लो क्या होगा. तो टेस्ट सिनेरियो में हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज द फंक्शनल फ्लो टू चेक this functionality and these module. Okay, so in test scenario we write the high level of functionality, like I want to check the login of any application. So what is test scenario for is check the successful user login to this application. So this is a test scenario for this application. How you write the test scenario and identify the test scenario from the use cases. The use cases given written into the SRS document. So you write the test cases from the use cases and SRS document by the functionality breakdown and from stage change. So I'm showing you how to write it. Okay, तो आपको ज़्यादा अच्छे से idea होगा. And what is test cases? Test cases is the positive negative step of the test scenario. So in test cases what you do, you check how the test the particular functionality. Okay, and describe steps to perform with input data. अब आप जैसे आपने टेस्ट सिनेरियो लिखा है कि इसकी हमें चेक करनी है लॉगिन फंक्शनैलिटी. व्हाट वी डू इन टेस्ट केसेस, वी राइट व्हाट स्टेप वी टेक टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन. ओके, सो इट इज कम्स इनटू टेस्ट केसेस. तो आज हम थ्योरी में नहीं जाएंगे, हम प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करेंगे हाउ वी राइटिंग द टेस्ट केसेस. सो फर्स्ट व्हाट यू डू, you have to check the requirement document, means the SRS document. You have to understand all the requirement which is written into the project. So this is the Orange HRM project. So किसी भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को आप स्टडी करते हैं उससे पहले आपको उसका मेन ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए. Like you are using Facebook, Instagram, so what platform they are? They are a social media connector platform. By using them we connected with many people. Okay, so this is their motto, to connect people in social media. Like you using any many e-commerce site, from where what you can do, you do some online purchase, and you are using Swiggy, Zomato. So what you do, you order a food from them. So they're their main motto. So first understand what is project is going to, how to is going to work, and what is it need, ये किस लिए यूज आने वाला है, इसका मेन टारगेट क्या है, ये एंड यूजर की कौन सी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला है. जब तक हमें ये चीज क्लियर नहीं होगी हम उसकी प्रोजेक्ट की जो मेन फंक्शनैलिटी है उसे अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. ओके, so what is this there is a live project which is called Orange HRM, in which the HR manager or HR department people maintain the all employees information. ठीक है, आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो दे ऑल maintain your personal information, your some data which is required for the company to contact you in any way. And these are also in legal terms that if you run a company you have all kind of data of the employee. So if some mishappen or something, so all data, so anyone can take the employees data from the company. So this is a legal term. So for any company they have to maintain and maintain all employee information. So what is Orange HRM do? They store all employee information. Like मैंने company join की है, तो
कंपनी ज्वाइन करने के बाद व्हाट माय एचआर मैनेजर डू, they create a profile on their Orange HRM application. They create a profile for me. So they generate a profile in which a employee ID assigned to my profile, and they mention all kind of data, all information in the Orange HRM portal. So it is secure for him. The it is a open source HRH management, so anyone can use it. Okay, but you have to log in as a HR manager, and then you maintain all your employee information in it. Okay, so अब आपको लिखने हैं टेस्ट केसेस एंड टेस्ट सिनेरियो ऑरेंज एचआरएम पे. सो व्हाट यू फर्स्ट डू, you have to understand the idea behind of it, how ये किस काम में आने वाला है. लाइक ऑरेंज एचआरएम है तो इसका मेन मोटो है कि ये एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को सेव करता है और एचआर मैनेजर से प्रोसेस करता है. और जो आपका जैसे लाइक आई एम अ टेस्टर, so my test lead or test manager also have this information. I cannot edit my personal information and these data in Orange HRM tool or in this application. Only the HR or my manager can edit my information. अगर मैंने एम्प्लॉयज को ये एक्सेस दे दिया तो वो किसी भी टाइम पे अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं होती है. इसमें सिर्फ एचआर, जो टॉप ऑफ द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कैन एडिट द इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो किसी आपको टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केसेस लिखने से पहले सबसे पहले क्या करना होता है, आपको रिक्वायरमेंट समझनी होती है कि इस एप्लीकेशन की क्या नीड है, what is the target audience for it. Then you learn and understand what is the application do, how the functionality will flow for this application. You have to आपको देखना पड़ता है कि इसमें कितने मॉड्यूल्स हैं. लाइक ऑल एप्लीकेशन हैव सर्वर मॉड्यूल्स. You are using Facebook, Amazon, there are several modules. In Facebook you check many live pages are there, like you have a photo album, news feeds, post, your activities, your account settings. These are modules for Facebook. So when you are testing Facebook, okay, so आपको उन मॉड्यूल्स के बारे में समझना होगा कि हर एक मॉड्यूल की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है, अपने अपने वैलिडेशंस हैं, तो हमें पहले उसे समझना होता है. उसके बाद हम उसके लिए टेस्ट केसेस या टेस्ट सिनेरियोज लिखते हैं. ठीक है, तो का लॉगिन पैनल है तो उसमें आपको दिख रहा है इन लॉगिन पैनल व्हाट यू कैन डू हियर, स्पेसिफाई द name of the username of the like admin. So admin can log in on it. It's a username for this user and their password. Then they are able to log in. Then I am writing test cases for first module, which is my info module. You have to start from the beginning. कहाँ से स्टार्ट होती है कोई एप्लीकेशन, उसके साइन अप लॉगिन से. तो हमें सबसे पहले उसके लिए टेस्ट केसेस लिखने होते हैं. तो ऑरेंज एचआरएम पे जाने से पहले मैं आपको अमेजोन के एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज यू ऑल आर फैमिलियर विथ अमेजोन. ओके, तो in first, this is where we manage the test scenario, test cases, and test cases for the application. You can write the test cases and test scenario in the Excel format, or some companies are using some management tool, like they use Zira or any other tool to writing the test cases. Like I'm using in my company, we have inserted the user story and the test cases in Zira, and some companies are using Excel format also. So you write all test cases and test scenario in the Excel format. So what are the test attributes are used in this? Okay, so you can check. First you have mentioned the project name. Okay, so this is for Orange HRM. First, what you have mentioned the project name in which you perform the testing. Okay, what reference document you are follow. So जो आप document follow कर रहे हैं, जो आपको document मिला है, उस document का नाम with versioning. क्योंकि there are multiple version. If some enhancement comes, so the BA rewrite the document and change the version.
तो आपने अभी फंक्शनैलिटी किस वर्जन के अकॉर्डिंग लिखी है, वर्जन फर्स्ट के अकॉर्डिंग. इफ कुछ इन्हेंसमेंट आते हैं या कुछ आते हैं तो इसमें मॉडिफिकेशन होगा. सो यू राइट इट दैट व्हाट टेस्ट सिनेरियो एंड टेस्ट केसेस रिटन बाय मी इट्स डिपेंड ऑन द वर्जन 1. If you have made any changes in version 2, then I have to rewrite and check my test cases also. Okay. So what you mentioned, the project name, the reference document which are you referred to write the test scenario and test cases. Then you the what created this document. You mentioned the name, team name comes here, date of creation, and when the document get reviewed. As a tester, you write the test scenario and test cases. It always review by your senior, like your lead, your test manager. They will review it how it is actually कवरिंग ऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन और नॉट. आपने लाइक आपने पूरी एप्लीकेशन के टेस्ट केसेस उनको मॉड्यूल वाइज आप में डिवाइड होते हैं. लाइक यू हैव 4 member in your team, in testing team. So the test lead divide 2-3 modules to each member. Then they write the test cases for it. So it goes for review. तो आपका टेस्ट लीड एंड टेस्ट मैनेजर चेक करता है कि इन सारे टेस्ट केसेस में ओवरऑल फंक्शनैलिटी एप्लीकेशन की कवर हुई है या नहीं. Review it. If you are miss any test cases, you have not checked any validation on the application, so they review it and they comment it, this is missing or this needs to be checked again, it is available in the requirement document or not. So the review process also go on the test case document. Okay. So what are the test attribute to write a test cases? So first is the test case ID. So what is the test case ID? A unique identification assigned to each test case. Okay. So when you mention like you are testing any application, okay, this is test cases for you. Okay, this test case ID. How you write a test case ID? Okay. So first the prefix is TC, which is means test case. Okay. So you always write TC. Then you specify the module name, which is like MI. ओके. सो आपका जो मॉड्यूल का नेम होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं. ओके. लाइक आई एम यूजिंग इन्फो मॉड्यूल, सो आई कैन यूज इट IM. Here I'm using it as module info. Okay. So the short term I give the test case ID is MI. So this is the first test case for the info module. So the digit number is 01. Okay. What you write, you always write test case. This is the prefix. Okay. For all test case ID. Then you mention the module name. And then you mention what numbering of test cases, like 01 or it is 0, it is 25, or maybe you write 100 test cases for this module functionality. Okay. जैसे एक मॉड्यूल है उसके अंदर उसके सब मॉड्यूल्स भी होते हैं. ओके. द इनर मॉड्यूल्स आर आल्सो देयर फॉर मॉड्यूल्स. सो लाइक in Amazon, you are going to the store where you can find many categories are there. So there are also some subcategories. Like in clothes, there are what is the subcategory for it? Male, female, kids. Okay, so these are the subcategories for uh, clothes category. So our module is clothes. Okay, and there's inner module and sub module is मेल फीमेल एंड. सो उसके लिए जब आपको इनर के लिए टेस्ट केस आईडी देनी हो, देन मॉड्यूल नेम, देन द इनर मॉड्यूल, and then their number. Okay, like 0. Okay, so these the format which we use for specify the test case ID. What is the use for this test case ID? Like you perform this test case and this status come into fail.
mean you found the defect for this test case. It's not working as expected. So you have to mention the test case id into your defect reporting. So the developer can check, okay, this test case is not working. Okay, so this for management. So they can refer this test case id, this is got fail. Or if you have that record, like मैंने मेरे पास ये रिकॉर्ड है कि मेरा जीरो इस मॉड्यूल का ये वाला टेस्ट केसेस फर्स्ट टाइम फेल हुआ था, तो जब मैं वापस री एग्जीक्यूट करूंगी, रीटेस्टिंग करूंगी, रिग्रेशन परफॉर्म करूंगी, तो मेरे पास इसकी टेस्ट केस आईडी होगी, तो आई इजीली रीटेस्ट इट. ओके, सो दिस इज द यूज फॉर टेस्ट केस आईडी, और इट ऑलवेज यूनिक फॉर all of the test cases. Okay, the second one is the test case objective. So there are two things: test scenarios and test cases. First is test scenario. So for Amazon, we are covering in test case scenario to check the sign-in functionality for registered user. What is the registered user? Who already have an account with Amazon. Okay, so हमें registered user के लिए sign-in functionality check करनी है. So this is my test scenario. Okay, and what is test case? The test case is the positive and negative steps which take to perform a certain operation to check the functionality of the operation. So मेरे टेस्ट केसेस क्या होंगे? मुझे साइन इन फंक्शनलिटी चेक करनी है रजिस्टर यूजर के लिए. So what I do? First, I have to insert the valid credential, the valid email ID and password for the registered user. So what is the first test case? There are two kind of testing and two kind of test cases we have mentioned. The first is positive and the second one is negative. What we mentioned in the positive test cases, how it's supposed to be work, कि ये इस तरीके से वर्क करना चाहिए इन अ पॉजिटिव वे. अगर आप और सारे वैलिड इनपुट्स के साथ उसे टेस्ट कर रहे हो, तो उसका एक वैलिड, जैसे आपने साइन अप किया है या लॉग इन किया है अपने वैलिड क्रेडेंशियल के साथ, तो उसका वैलिड आउटपुट क्या होगा? आप लॉग इन कर जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर. तो दिस इज द पॉजिटिव फ्लो एंड पॉजिटिव वे टेस्टिंग, एंड यू राइट टेस्ट केसेस फॉर अ पॉजिटिव फंक्शनैलिटी. ओके, बट एज यू आर अ टेस्टर, यू ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. सो आपको सिर्फ पॉजिटिव नहीं चेक करना है, आपको नेगेटिव भी करना है, कि अगर कोई यूजर इनवैलिड डेटा के साथ इसे चेक करता है, तो what the application, how the application responses. So in negative testing, what we focus, what the system not supposed to be do, कि ये एप्लीकेशन को नहीं करना है. जैसे इनवैलिड डेटा के साथ क्या हो रहा है एप्लीकेशन में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इनवैलिड डेटा के साथ भी लॉग इन कर सकती हूँ. So you have to always perform the positive and negative testing on the application. So उसके लिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट केसेस भी लिखने होंगे. ठीक है, तो फर्स्ट आपने क्या लिखा है? पॉजिटिव टेस्ट केसेस इन अ पॉजिटिव फ्लो, कि आपने वैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ टेस्ट किया है. उसके बाद आप क्या लिखेंगे? अच्छा ठीक है, अगर मैंने मेरा एक मतलब मेरे दोनों मोबाइल नंबर और पासवर्ड वैलिड थे. द सेकंड मैं क्या चेक करूंगी? अब मैं नेगेटिव पे जाती हूँ, कि फर्स्ट नॉर्मल होगा कि दोनों मेरे इनपुट्स वैलिड है. सेकंड में जाती हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर तो वैलिड है, बट मेरा ईमेल जो आईडी है वो, लाइक मेरा पासवर्ड यहाँ पे जैसे अब ये मैंने मिस कर दिया. सो दिस इज इनवैलिड मोबाइल द पासवर्ड. आपका एक यानी मोबाइल नंबर आपका वैलिड इनपुट है, बट पासवर्ड आपका इनवैलिड इनपुट है. अब एज ए न्यू यूजर मैं आती हूँ, मैंने अपना मोबाइल नंबर सही डाला है, बट आई फॉरगॉट माय पासवर्ड. अब मैं किसी इनवैलिड पासवर्ड के साथ लॉगिन नहीं करनी चाहिए एप्लीकेशन में. मुझे क्या शो होना चाहिए? एक एरर मैसेज, like you are new for any application. When you use it and you have insert data, so you always insert what you have. okay, आपने वो डिटेल्स उसमें इंसर्ट की, बट वो उस एप्लीकेशन के लिए वैलिड है या नहीं, वो आपको एप्लीकेशन ही बताएगी कि ये आपने गलत इंसर्ट किया है, ये डेटा नहीं, ये डेटा करेक्ट नहीं है. बट जैसे मैंने लॉगिन किया, अब मेरा पासवर्ड गलत था, बट अमेजोन ने मुझे उसका कोई एरर मैसेज शो नहीं किया. मैंने जैसे इनवैलिड पासवर्ड इंसर्ट किया, तो लोडिंग आइकन, कंटिन्यूअसली लोडिंग आइकन मुझे शो हो रहा है. आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाई इट इज शोइंग, और मुझे कोई एरर मैसेज शो नहीं हुआ, तो आई एम गेट कंफ्यूज व्हाई इट इज नॉट वर्किंग. सो फॉर why negative testing is important, because we have to validate the invalid and negative scenario also.
जब यूजर कुछ इनवैलिड करता है या कुछ नेगेटिव करता है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते, जैसे पॉजिटिवली अगर चल रहे हैं हम वैलिड इनपुट्स के साथ चलेंगे तो वो नॉर्मल फ्लो करेगा, बट अगर आप कुछ अलग ऑपरेशन कर रहे हैं या आपने कुछ बाय मिस्टेकली उसमें इंसर्ट किया है तो एप्लीकेशन को आपको एक वैलिड एरर मैसेज देना पड़ेगा, सजेशन मैसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आप ये चीज गलत कर रहे हैं, ताकि आप उसे सही कर सकें और लॉग इन कर सके एप्लीकेशन में। ओके, सो द फर्स्ट इज पॉजिटिव टेस्ट केसेस, देन आपका एक जो क्रेडेंशियल है लाइक मोबाइल नंबर वैलिड है और पासवर्ड इनवैलिड है, सो आप इसे ऐसे चेक करेंगे। फिर नेगेटिव आप नेक्स्ट पे जाएंगे कि आपका मोबाइल नंबर इनवैलिड हो सकता है और आपका पासवर्ड सही हो सकता है। तो ये टेस्ट केसेस बनेंगे जब आप लॉग इन कर रहे हैं एप्लीकेशन के लिए। फिर आपने देखा कि ओके ये इस तरह से वर्क कर रहा है, अब लॉगिन करने के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, क्या अगर जैसे मैंने ब्लैंक फील्ड्स है, मैंने ईमेल में भी कुछ नहीं डाला, मोबाइल नंबर में कुछ नहीं डाला है, पासवर्ड भी मेरा फील्ड ब्लैंक है, और अगर मैं डायरेक्ट उसके साइन इन बटन पे क्लिक करती हूँ तो क्या होना चाहिए, लॉगिन करवा देगा वो मुझे बिना किसी क्रेडेंशियल के? नहीं करवाएगा, बिकॉज मैंने कोई डेटा इंसर्ट ही नहीं किया, और अगर मैं डायरेक्ट साइन इन पे क्लिक कर रही हूँ तो क्या होगा। सो वी हैव टू चेक इट कि जो रिक्वायर्ड और मैंडेटरी फील्ड्स हैं उस फॉर्म के लिए, तो वहां पे एक वैलिडेशन शो होना चाहिए कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू फिल इट, अदरवाइज यू कांट प्रोसीड फर्दर। सो क्या होना चाहिए, हम इसको चेक करेंगे कि ब्लैंक फील्ड विदाउट एंटरिंग विदाउट इंसर्टिंग डेटा इनटू इट, ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये हम इसमें चेक करेंगे। चेक द साइन इन फंक्शनैलिटी फॉर रजिस्टर यूजर विद ब्लैंक फील्ड्स और फॉर मैंडेटरी फील्ड चेक। हमें चेक करना पड़ेगा कि वो जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनके लिए कोई वैलिडेशन शो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है एप्लीकेशन में। ठीक है, देन अब हम साइन इन फंक्शनैलिटी हम एक फर्स्ट चेक करेंगे वैलिड इनपुट के साथ, देन हम चेक करेंगे इनवैलिड इनपुट के साथ, फिर हम उसको चेक करेंगे ब्लैंक फील्ड्स के साथ। ओके, सो दीज आर टेस्ट केसेस फॉर रजिस्टर्ड यूजर। ओके, सो आपको हमेशा किसी भी टेस्ट सिनेरियो के लिए उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के टेस्ट केसेस लिखने होते हैं। So this is our test cases and test objective when you write a test cases for any functionality. Then comes to precondition. What is precondition? आप किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके पहले आपके पास क्या प्री कंडीशन होनी चाहिए, या प्री रिक्वेसिट, वी ऑल्सो कॉल्ड इज प्री रिक्वेसिट। सो वॉट प्री रिक्वेसिट यू आर रिक्वायर्ड। अब मैं किसी एप्लीकेशन में लॉग इन करने जा रही हूँ वैलिड इनपुट के साथ, तो पहले मेरे पास वो वैलिड इनपुट होना भी तो चाहिए ना। So what is the prerequisite for it? Here what I'm checking the register user sign in functionality. So for what is the prerequisite for it? User must be registered in Amazon with valid email ID. आपने रजिस्टर्ड ही नहीं किया हुआ है और आप डायरेक्ट लॉग इन करना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द प्री कंडीशन फॉर टेस्टिंग द रजिस्टर्ड यूजर। Amazon site is launched on a compatible browser. अब आपको चेक करना है लॉगिन फंक्शनैलिटी, आपने Amazon लॉन्च किया ब्राउजर पे बट वो चल ही नहीं रहा है, सो इट इज ऑल्सो अ प्री रिक्वेस्ट फॉर इट। बिफोर गोइंग टू द लॉगिन स्क्रीन you have to launch the Amazon site on your browser. Okay, so what is precondition, what condition required, what data required before executing the test cases. So this is called the precondition for this test cases. Next come test steps. What steps you take to perform this test? अब मुझे लॉग इन करना है किसी एप्लीकेशन में, तो उसकी क्या क्या स्टेप्स होंगी वो मुझे सारी मेंशन करनी होती है। बिकॉज ये टेस्ट स्टेप्स कब हम फॉलो करेंगे, व्हेन यू राइट अ डिफेक्ट। मुझे जब एप्लीकेशन में डिफेक्ट मिलता है वहां पे मुझे टेस्ट स्टेप लिखनी पड़ती है कि दिस इज माय टेस्ट सिनेरियो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन मैंने ये डेटा इंसर्ट किया, उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स में ये मिला है, which is not same as the expected output. So you always have to mention the test step which you are following to perform the functionality of the application. So मुझे रजिस्टर यूजर का साइन इन परसेंट चेक करना है, तो मेरी फर्स्ट टेस्ट स्टेप क्या होगी, एंटर द URL. व्हाट इज द URL हियर, amazon.com और amazon.in. so हमने यहाँ पे URL स्पेसिफाई किया, देन क्लिक ऑन द साइन इन ऑप्शन। ओके, सो हमें इसके यहाँ पे हम okay, so you can see this is the Amazon website application, you can check here. So you can see there is a sign in button. So आपको साइन इन पे जाने के लिए पहले से URL को ब्राउजर पे लॉन्च करना होगा, उसके बाद आप
इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो दिस इज माय सेकंड टेस्ट स्टेप. आफ्टर क्लिकिंग ऑन इट आई हैव टू इंसर्ट माय मोबाइल नंबर. देन आई हैव टू क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन. सो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे मेरे पासवर्ड के लिए आस्क करेगा. So these are steps which going to take to execute this scenario. Okay. फिर मैं इसके बाद इसमें क्या इंसर्ट करूंगी, मेरे जो वैलिड क्रेडेंशियल है, ईमेल आईडी और पासवर्ड. देन मुझे किस पे क्लिक करना है, साइन इन बटन पे. तो दीज आर द टेस्ट स्टेप विच इज टेकन टू परफॉर्म द साइन इन प्रोसीजर फॉर रजिस्टर यूजर विथ वैलिड इनपुट. ओके, सो ये मेरी टेस्ट स्टेप होंगी जो मुझे टेस्ट में एज ए टेस्ट स्टेप मेंशन करनी है. द नेक्स्ट कम इज टेस्ट डेटा. अब यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, लाइक अगर मुझे टेस्ट डेटा चाहिए यानी वैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो मैं पहले उसे क्रिएट करूंगी और जो टेस्ट डेटा मेरे पास होगा वो मैं मेंशन करूंगी कि ये टेस्ट ईमेल आईडी आप यहाँ इस पे यूज कर सकते हैं और ये पासवर्ड आप इसके लिए यहाँ यूज कर सकते हैं. दिस इज टेस्ट डेटा which we already created to testing any application. So we mentioned the test data in the test document. So if any other tester use this and refer this test case document, so they directly use this test data as an input and perform testing on it. Okay. Then what is come in your expected result? So expected result के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है आप उसे फॉलो करेंगे कि अगर मैंने वैलिड के साथ किया है तो मेरा क्या उसके लिए रिजल्ट होना चाहिए. सो आप वैलिड इनपुट के साथ कर रहे हैं तो आप उसमें एप्लीकेशन में लॉग इन हो जाएंगे विद द सक्सेस मैसेज. यू हैव ऑलवेज हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर एक्शन टू द एंड यूजर. ठीक है, आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया है और वो सक्सेसफुल इवेंट है तो आपको हमेशा उसके लिए शो करना पड़ता है या व्हाट एक्शन यू हैव परफॉर्म्ड इज सक्सेसफुली डन. ओके, so you have to show them a success message which we always show in a green color. And if you are trying to do any action with invalid data or you are doing any action which is not appropriate, so we are showing them error message. We are show this you have to do this because you are doing some, like मैं यहाँ पे invalid मोबाइल नंबर इंसर्ट कर रही हूँ, invalid पासवर्ड इंसर्ट कर रही हूँ, तो Amazon मुझे एक एरर मैसेज देगा, प्लीज एंटर वैलिड पासवर्ड फॉर इट. ओके, सो दिस कम इन एरर फॉर्मेट कि आप गलत डेटा इंसर्ट कर रहे हैं. व्हेन यू प्रोवाइड देम सजेशन कि आप कोई चीज आप कोई फील्ड यूज कर रहे हैं एंड यू आर पुटिंग सम wrong information on it, like I am inserting character in mobile number field, so they are giving me suggestion in yellow color कि आप मोबाइल यू हैव टू इंसर्ट डिजिट ऑन दिस फील्ड, आप यहाँ पे कैरेक्टर इंसर्ट नहीं कर सकते. ओके, सो देयर आर थ्री थिंग्स. सक्सेस मैसेज विच ऑलवेज कम्स व्हेन यू परफॉर्म सम एक्शन, successful event, then it's come in success message. You are doing some inappropriate action, some giving some invalid data, then it's come in error message. And when you are doing some लाइक आपने मोबाइल नंबर किसी फील्ड में आप गलत डेटा इंसर्ट करें तो हम सजेशन देते हैं पहले कि आप इस चीज जैसे मोबाइल में आप कैरेक्टर इंसर्ट कर रहे हैं, ईमेल आईडी में आपने ओनली कैरेक्टर लिख दिया है, आपने उसका वैलिड फॉर्मेट यूज नहीं किया है, तो वी गिव देम सजेशन. ओके, so these how you write the test cases. So first you write the test case ID, then you mention the text objective. So like in Orange HRM what we do, हमने एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय, इस पे हम पहले बाद में आते हैं, पहले हम Amazon के कुछ टेस्ट केसेस और देख लेते हैं, so you get more idea about it. Okay, और the sign in. Okay, now you have to check the sign in functionality for new user. अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप क्या करेंगे, चेक वॉट एवर द न्यू यूजर इज एबल टू साइन इन विद द वैलिड डेटा विदाउट साइन अप इन द Amazon अकाउंट. आपने अभी तक साइन अप नहीं किया हुआ है, यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड यूजर फॉर Amazon एंड यू आर ट्राइंग टू लॉग इन द एप्लीकेशन डायरेक्टली, लाइक अपने आपका वैलिड जीमेल आईडी, ईमेल आईडी इंसर्ट कर दिया है ईमेल फील्ड में एंड पासवर्ड. सो एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू लॉग इन Amazon. सो आप लॉग इन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने साइन अप ही नहीं किया है अभी इस एप्लीकेशन में, तो आप इसमें लॉग इन कैसे कर पाएंगे. सो यू हैव टू राइट ऑल काइंड ऑफ टेस्ट केसेस फॉर चेकिंग एनी फंक्शनैलिटी. तो देयर इज अ टू वे.
How you write the test cases? First, you have to learn the SRS. ओके, जैसे आप इस SRS में देख रहे हैं, आपको एक डिजाइन उसने प्रोवाइड किया हुआ है कि ये लॉगिन पैनल का डिजाइन है, ठीक है। इसके बाद उसके बारे में सारी वैलिडेशन लिखी हुई, लाइक हम माई इन्फो मॉड्यूल पे अगर हम टेस्ट केसेस लिखते हैं, ठीक है, ये माई इन्फो मॉड्यूल मैंने आपको दिया है कि आपको इस पे टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनेरियो लिखना है। तो यू कैन सी एक डिजाइन आपको एक वाई फ्रेम दिया हुआ है कि ये डिजाइन है, इसमें ये फील्ड्स होंगे, लाइक फुल नेम, एम्प्लॉय आईडी, देयर जेंडर, देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सब यहाँ मेंशन है। तो आपको इस हर फील्ड के लिए चेक करना है कि इसमें हम डेटा इंसर्ट कर पा रहे हैं या नहीं। डेटा इंसर्ट करने के बाद जब मैं सेव पे क्लिक कर रही हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है या नहीं, डीबी में भी ये सेव हो रही है या नहीं। जब मैंने यहाँ पे अटैचमेंट लिखा हुआ है, अब मैं इस पे ऐड पे क्लिक करती हूँ, जो भी अटैचमेंट मैंने अटैच किया है इसके साथ वो इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में स्टोर हुआ है या नहीं। डिलीट पे क्लिक किया है तो जो अटैचमेंट मैंने अटैच किया है वो डिलीट हो रहा है नहीं। सो आपको जब आप इस डिजाइन को देखते हैं, you have to first read what is written for this module and any validation applied for it. So आपको वो सब टेस्ट केसेस में मेंशन करना होता है। ओके, so you can read the following are restricted fields where ESS user cannot make changes. So ये जितनी इंफॉर्मेशन है इसे कौन कर सकता है, फुल इसे कौन फिल करेगा, HR मैनेजर करेगा आपका, या फिर ESS सुपरवाइजर, यानी कि इस एम्प्लॉय का जो सुपरवाइजर है, इसका लीड है, वो इसकी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने फर्स्ट आप एक यूजर बना रहे हैं, एक न्यू यूजर, तो उसकी हमेशा एक ऑटो पॉपुलेटेड ईमेल एम्प्लॉय आईडी होगी। तो ये एम्प्लॉय आईडी कहाँ जनरेट होती है, बैकएंड में। जैसे आप न्यू क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय आईडी जनरेट होगी और उसे वो फ्रंट एंड में शो करेंगे कि नाउ दिस एम्प्लॉय आईडी असाइन टू दिस एम्प्लॉय फॉर दिस कंपनी। or the SSN number, SIN number, the SSN number used in USA. They are allot a 9 number of digit for the US's employee. The SIN number is allocated in Canada. So this HR tool is in used in many countries. So these number are differed according to the country. Like in USA provide SSS number, the Canada provide SIN number. In India we provide the employee ID for the user, their driver license number, DOB. These are information which we store in our system in Orange HRM. So first you have to check the design part, then you checking what is returned into the document, then you start writing the test cases for it. Okay, like you can see हमने अब हम सिर्फ नॉर्मल एक फ्लो लेके चलते हैं। सो इस पे हम लिखते हैं जैसे फोटोग्राफ। ओके, so what we can do, the photograph, the ESS user can add a photograph of himself and herself by clicking on the photograph at the corner screen and the screen as shown in will appear. तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे आप फोटोग्राफ आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पैनल ओपन होगा। अब इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ऑरेंज HRM के लिए। So what I'll do, I'll mention a test case ID for it first. Okay, so this is my info module. So I mentioned M as a module and info like M. Then I write first test cases, or maybe it's my 25 number of test cases. Okay, so I'm writing a test scenario for checking the photograph. अब मैं ये फोटोग्राफ चीज जो फोटोग्राफ फंक्शनैलिटी है वो मैं कहाँ पर चेक कर रही हूँ, पर्सनल डिटेल में। ओके, सो आई हैव टू मेंशन फ्रॉम वेयर आई यूजिंग इट, बट दिस इज द डिफरेंट पार्ट यू कैन चेक इन पर्सनल डिटेल। this is my personal detail. Okay, and photograph is the another thing, like I have to click on here the photograph option will available, and when I click on the photograph section in the corner, then this screen appear to me. Okay, so what I write, like the photograph functionality for personal detail screen. Okay,
So this is my test scenario for checking photograph फीचर. ओके, तो ये मेरा टेस्ट सिनेरियो हो गया. उसके बाद मुझे इसके लिए क्या करना है, टेस्ट केसेस मेंशन करना है. तो मुझे इसको रीड करना पड़ेगा. कब स्टार्ट होगा, लाइक व्हेन द फोटोग्राफ सेक्शन विल अपीयर. सो आई हैव टू चेक, user can add a photograph himself on clicking on the photograph at the corner screen and the screen. तो कब यू हैव टू चेक कि अगर अच्छा मैंने क्लिक किया है लेफ्ट कॉर्नर में फोटोग्राफ ऑप्शन पे, तो वो जो पॉपअप जो स्क्रीन मुझे अवेलेबल हो रही है वो शो हो रही है नहीं. सो यू हैव टू राइट द टेस्ट केसेस फॉर दिस थिंग आल्सो. सो चेक photograph screen will appear when user click on the option or not. Okay, तो हमें ये चेक करना है कि जब हमने फोटोग्राफ ऑप्शन पे क्लिक किया है तो उसकी स्क्रीन विजिबल हो रही है या नहीं. उसके लिए क्या प्री कंडीशन होनी चाहिए, प्री कंडीशन क्या होगी, आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, आपको सबसे पहले उसके लिए पर्सनल डिटेल पेज तक जाना पड़ेगा. सो दिस इज द प्री कंडीशन. मैंने अगर लॉगिन नहीं किया है एज HR मैनेजर इन द एप्लीकेशन, और मैं डायरेक्टली कैसे जा सकती हूँ फोटोग्राफ सेक्शन पे. सो व्हाट इज द प्री कंडीशन, प्री रिक्वेस्टेड फॉर मी to test this functionality. You must land on the personal detail screen. Okay, तो इस स्क्रीन पे आने के बाद ही मैं इस ऑप्शन को क्लिक कर पाऊंगी. देन व्हाट इज, इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, टेस्ट डेटा. कोई टेस्ट डेटा रिक्वायर्ड है मेरे को सिर्फ ओनली क्लिक करने के लिए. टेस्ट डेटा रिक्वायर्ड नहीं, बिकॉज नाउ आई एम नॉट इंसर्टिंग एनी इनपुट इन इट फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस टेस्ट केस. सो आई एम जस्ट राइट NA. Okay, not available, not required. Okay, and next what were then I write the test step for it. So what is the test step? First test step, login into the application. Then what, second is the click on the personal detail option. Then the third one is click on the photograph option. Okay, so this is a test step for executing this test cases. Okay, so what will my expected result for it? As I read in the SRS document, it mentioned a photograph screen should get appear when user click on the option. Okay, so this is my expected result. Okay, अब इसको मैं जब एग्जीक्यूट करूंगी, सो दिस इज माय टेस्ट केस आईडी. ये मैंने इसके लिए टेस्ट सिनेरियो लिखा है. अब एक टेस्ट सिनेरियो के अंदर मल्टीपल टेस्ट केसेस हो सकते हैं. ओके, ये हमने अभी यहाँ पे भी जैसे लाइक यू चेक द सक्सेसफुल, हमने अभी अमेजोन के लिए चेक किया था. ठीक है, तो व्हाट आई डू, आई राइट अ सिंगल टेस्ट सिनेरियो टू चेक द साइन इन फंक्शनैलिटी, और मैंने उसके लिए मल्टीपल टेस्ट केसेस लिखे थे. सो टेस्ट सिनेरियो इज आल्सो अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेस्ट केसेस आल्सो, in which we write the positive and negative test step to execute to test the functionality of the software. ठीक है, तो ये मैंने इसके लिए टेस्ट सिनेरियो लिखा है. अब इसका फर्स्ट टेस्ट केस मैंने लिखा है कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो
स्क्रीन अपेयर होने चाहिए नहीं है। इसकी प्री कंडीशन लिखी है कि मैं पहले पर्सनल डिटेल स्क्रीन पे अवेलेबल होनी चाहिए, देन आई एम एबल टू क्लिक ऑन द फोटोग्राफ स्क्रीन। अगर टेस्ट डेटा रिक्वायर्ड है तो वो मैं मेंशन करूंगी, अगर नहीं है तो मैं मेंशन नहीं करूंगी। देन व्हाट टेस्ट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्शन, देन आई राइट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ओके, तो ये सारी स्टेप्स कब तक चलेंगी, ये सब हमें जब हम टेस्ट केसेस डॉक्यूमेंट राइट कर रहे हैं हमें मेंशन करनी है। देन नेक्स्ट कम द एक्चुअल रिजल्ट। सो व्हेन द एक्चुअल रिजल्ट गेट, आप जब टेक्स्ट एग्जीक्यूशन साइकिल में जाएंगे, द व्हेन यू कम इनटू द टेक्स्ट एग्जीक्यूशन फेज, देन यू आर एबल टू राइट द एक्चुअल रिजल्ट, बिकॉज इट्स कम व्हेन यू एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट। जब आप इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेंगे तभी आपको एक्चुअल रिजल्ट पता चलेगा। बिकॉज एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से हम उसे लिख देते हैं कि हाँ ये फंक्शनलिटी हमें से चाहिए, बट जब हम उसे टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा एक्चुअली अभी हमारी एप्लीकेशन क्या परफॉर्म कर रही है, लाइक इन एक्सपेक्टेड व्हाट वी सपोज टू डू एंड इन एक्चुअल व्हाट द एप्लीकेशन इज रियली डूइंग। So we mention if the expected and actual result are matched, then this test case is pass. Okay, after executing we write the actual result and the status test status for this test case. If the actual result matches the expected result, then the test status for this test case is pass. अगर आपका actual result match नहीं करता है expected से, तो फिर आपका test केस का स्टेटस क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ओके, फिर अब हम एक और पढ़ते हैं। फिर इसके बाद इसने लिखा हुआ है click on browse and then select a photograph from the relevant path, click and upload. Once you have select the picture selected will populated on the photograph section. तो ये हमें चेक करना है कि जब आप ब्राउज पे क्लिक करते हो और सेलेक्ट करते हो पिक्चर, वो अपलोड हो रही है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम सिनेरियो जो होगा वो हमारा हम चेक करेंगे कि द पिक्चर विल अपलोड थ्रू द अपलोड ऑप्शन और नॉट। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे एक वैलिडेशन दिया हुआ है, नोट यू मे ओनली अपलोड अ मैक्सिमम साइज ऑफ 1 MB इन जेपीजी पीएनजी एंड जीआईएफ फॉर्मेट। So you also check these validation also when you write any test cases or test scenario, because there are some validation। अब आपने आपके पास इनपुट है, तो यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि 1 MB मैक्सिमम साइज होगी, इससे ज्यादा की आप पिक्चर यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। लाइक आई हैव माई प्रोफाइल पिक्चर विच इज 2 MB 2 MB, तो मैं उसे इसमें अपलोड नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि 1 MB से ज्यादा की इमेज में अपलोड कर पा रही हूँ या नहीं। ओके, और 1 MB से कम की इमेज भी अपलोड कर पा रही हूँ नहीं, क्योंकि मेरी मैक्सिमम साइज 1 MB है, उससे कम की तो मैं अपलोड कर सकती हूँ। ओके, और व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर्मेट फॉर इट, जेपीजी पीएनजी जीआईएफ। सो फर्स्ट आई हैव टू चेक द वैलिड फॉर्मेट, कि ये वैलिड फॉर्मेट में कर पा रही हूँ नहीं। आई हैव टू अपलोड ऑल काइंड ऑफ इमेज लाइक जेपीजी पीएनजी एंड जीआईएफ, दिस इज माय वैलिड इनपुट। इसके बाद मैं चेक करूंगी मेरे इनवैलिड इनपुट, लाइक यहाँ पे मेंशन है जेपीजी पीएनजी GIF, there are another formats like TIF I can upload, I can use another image format। So अगर वो अपलोड करती हूँ तो एप्लीकेशन क्या रिस्पॉन्स करती है, मुझे एरर मैसेज देती है या मुझे अपलोड करने देती है या फिर वहीं पे स्टक हो जाती है, तो वो सब चीजें भी मुझे चेक करनी पड़ेगी। आई हैव टू चेक, जब भी कोई वैलिडेशन लिखा होता है तो उसको तो हमें चेक ही करना होता है कि हाँ जो वैलिडेशन लगा है उसके अकॉर्डिंग वो परफेक्टली वर्क करे या नहीं। बट अगर हम इस वैलिडेशन के, ये तो वैलिडेशन है कि इतनी MB होनी चाहिए और इतना होना चाहिए, अब इसका अपोजिट हम जाएंगे, अब इसका नेगेटिव प्रोसेस करेंगे तो नेगेटिव क्या होगा, 1 MB से ज्यादा, तो उससे ज्यादा पे क्या रिस्पॉन्स है एप्लीकेशन का। इन 3 फॉर्मेट के अलावा अगर मैं और कोई फॉर्मेट यूज करती हूँ तो एप्लीकेशन मुझे क्या रिस्पॉन्स दे रही है। तो ये सब चीजें हम किसमें मेंशन करते हैं, टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनेरियो में। ठीक है, तो मैं इस वैलिडेशन के लिए अब एक टेस्ट सिनेरियो लिखूंगी। ठीक है, तो व्हाट आई राइट, ओके, ये सेम मैंने यहाँ पे यूज किया है और इसकी इंक्रीमेंट कर देंगे इसकी टेस्ट केस नंबर। ठीक है, नाउ आई व्हाट आई राइट, check the
photo validation on the photograph ठीक है। अभी मेरा टेस्ट सिनेरियो है, तो जो मेरा वैलिडेशन वहाँ एप्लीकेबल है वो मैं इसमें चेक करूंगी कि वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने टेस्ट सिनेरियो लिखा है। अब टेस्ट केसेस में क्या आएंगे, मल्टीपल, चेक वॉट एवर यूजर इज able to upload 1 MB picture in photograph section or not. Okay, and the same goes for, ये तो मेरा हो गया वैलिड टेस्ट इसके लिए, ठीक है। इसके लिए अब मैं लिखूंगी नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या करूंगी, यूजर इज एबल टू अपलोड मोर देन 1 MB पिक्चर इन फोटोग्राफ सेक्शन। तो मेरा फर्स्ट तो क्या होगा, मैं 1 MB तक चेक करूंगी कि ये इमेज मैं इसमें अपलोड कर पा रही हूँ या नहीं। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा की मैं अपलोड कर पा रही हूँ नहीं, ठीक है। ये मेरा सेकंड टेस्ट केस हो गया। फिर इसके बाद मेरा थर्ड क्या है कि उसने मुझे वो स्पेसिफाइड इमेज फॉर्मेट दिए हैं वो मैं कर पा रही हूँ नहीं। तो इसमें मैं स्पेसिफाइड इमेज फॉर्मेट अपलोड कर पा रही हूँ या नहीं। तो मेरे स्पेसिफाई क्या थे, जेपीजी, जीआईएफ एंड पीएनजी, ठीक है। तो ये फॉर्मेट में इसमें अपलोड कर रहे हैं नहीं, ये मेरा फर्स्ट पॉजिटिव टेस्ट केसेस है, ठीक है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या होगा, इसका अपोजिट यानी इसका नेगेटिव, कि अच्छा पॉजिटिवली तो आप कर पा रहे हैं बट अगर नेगेटिव में करूं, ठीक है, मैंने अनस्पेसिफाइड जो नहीं है वो अगर फॉर्मेट में ट्राई करती हूँ तो ये मुझे क्या रिस्पॉन्स देती है। सो इस तरह से आपको हर वैलिडेशन को स्पेसिफाई करना होगा इन योर टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियो। और उसका पॉजिटिव तो हमें देखना ही है, वैलिडेट करना, जो वैलिडेशन दिया है वो उस तरीके से तो वर्क करना ही चाहिए, बट उसका इनवैलिड भी हमें चेक करना होता है कि पॉजिटिव में ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, नेगेटिव में ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। फिर इसके लिए मैं इसकी प्री कंडीशन लिखूंगी कि मुझे क्या चाहिए। तो सेम हम पर्सनल, मेरे पास मैं पर्सनल डिटेल स्क्रीन पे होनी चाहिए हूँ और फोटोग्राफ सेक्शन तक मैं लैंड हो जानी चाहिए, ये इसकी प्री कंडीशन होगी। द नेक्स्ट इज, इसके लिए अब मुझे क्या चाहिए, टेस्ट डेटा चाहिए। मेरे पास फर्स्ट क्या होनी चाहिए, एक 1 MB की फाइल होनी चाहिए, इमेज फाइल। उसके बाद मेरे पास अगर मुझे नेगेटिव चेक करना है तो मेरे पास 2 MB 3 MB की एक पिक्चर होनी चाहिए। फिर मेरे लिए थर्ड के लिए मेरे पास क्या टेस्ट डेटा होना चाहिए, मेरे पास जो इमेज फॉर्मेट है वो जेपीजी, जीआईजी और पीएनजी तीनों टाइप के होने चाहिए। मुझे तीनों टाइप के साथ उसे चेक करना है। ऐसा हो सकता है कि वैलिड फॉर्मेट में भी वो एक के साथ वर्क नहीं कर रहा हो, तो हमें ये सब चेक करना होता है। फिर उसके बाद मैं इसे चेक करूंगी और अनस्पेसिफाइड जितने इमेज फॉर्मेट है उनमें ये कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसकी टेस्ट स्टेप लिखूंगी। जैसे फर्स्ट मेरी टेस्ट स्टेप होगी कि मैं पर्सनल डेटा स्क्रीन तक आ चुकी हूँ, उसके बाद मैंने फोटोग्राफ पे क्लिक किया, फिर उसके बाद मैंने अपलोड पे क्लिक किया और मैंने एक 1 MB की फाइल उसमें से सेलेक्ट किया और अपलोड किया। देन आई हैव टू चेक द रिस्पॉन्स। तो ये सारी टेस्ट स्टेप मैं इसमें मेंशन करूंगी। फिर यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेड क्या होगा, अगर मैंने 1 MB की फाइल अपलोड की है तो क्या होगा, द पिक्चर should get uploaded in photograph section as a प्रोफाइल पिक्चर, ओके। तो ये तो मेरा हो गया इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये हो जानी चाहिए, अपलोड हो जानी चाहिए और विद द सक्सेस मैसेज, ठीक है। आपका कोई सक्सेसफुल इवेंट हुआ है तो वो उसके साथ क्या होगा, एक सक्सेस मैसेज हम हमेशा शो करेंगे, ठीक है। तो एक सक्सेस मैसेज के साथ वो हमें शो हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट है हमारा, उसमें हम क्या कर रहे हैं,
एक नेगेटिव टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप जब भी एक नेगेटिव टेस्ट परफॉर्म करोगे तो उसको हमें कैसे शो करना पड़ेगा कि नहीं, इनवैलिड इनपुट के साथ तो ये चलेगा ही नहीं, तो हमें उसे क्या शो करना है, हम यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड क्या होगा, एरर मैसेज शुड डिस्प्ले, तो वो एरर मैसेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ ये एरर मैसेज दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, यू पिक्चर मोर देन 1 MB। ठीक है, तो आपको ये एरर मैसेज शो करना पड़ेगा एंड यूजर को, तो उसे आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इससे ज़्यादा MB की मैं पिक्चर अपलोड नहीं कर सकता। सो पॉजिटिव के साथ जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो हम लिखेंगे, और नेगेटिव के साथ एरर मैसेज वैलिडेशन, स्टक नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन, या यूज़र कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यूजेबिलिटी हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए एप्लीकेशन की, क्योंकि अगर यूज़र कंफ्यूज होता है उसके किसी एक्शन से तो वो उसके अकॉर्डिंग वो बगे हुए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसे उस फीचर को अगर यूज नहीं कर सकता तो वो इससे हमेशा उसके लिए एक अनोइंग बिहेवियर रहेगा एप्लीकेशन का, कि वो नॉर्मली अपनी प्रोफाइल पिक्चर ही अपलोड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे हमने रीजन तो दिया नहीं कि वो क्यों अपलोड नहीं कर पा रहा है। तो वी ऑलवेज हैव टू गिव द प्रॉपर एरर मैसेज टू द एंड यूजर, सो वो उस अकॉर्डिंग डेटा उसमें इंसर्ट करे और अपना फंक्शनलिटी को प्रॉपरली यूज कर पाए। ठीक है, सेम इसके लिए होगा कि जब वो स्पेसिफाई करेगा तो ये इमेज अपलोड हो जाएगी, पर अगर वो कोई इनवैलिड फॉर्मेट यूज करता है तो हमें उसे प्रॉपर एरर मैसेज देना पड़ेगा, यू प्लीज यूज दीज इमेज फॉर्मेट फॉर अपलोडिंग प्रोफाइल पिक्चर हेयर। ठीक है, तो हमें इस तरह के एरर मैसेज उसको शो करने पड़ेंगे। So this is how you write the test scenario and test cases for each functionality. आपको सबसे पहले FRS, SRS जो आपके वायर फ्रेम्स है, डिजाइन है, उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। फिर उसके बाद उसकी एक एक फंक्शनैलिटी के लिए आपको टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनेरियो लिखना पड़ता है। ये हमारा मेजर पार्ट होता है, इसमें हम सब जितने भी तरह के टेस्ट केसेस हैं वो यहाँ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, कभी जब हम रियल टाइम में एप्लीकेशन को चेक करते हैं उस टाइम भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट केसेस होते हैं जो क्योंकि क्या होता है जब एप्लीकेशन हमारे सामने होती है तब ज़्यादा अच्छे से हम उसे एक्सप्लोर करते हैं, तो कुछ टाइम भी हमारे रियल टाइम कुछ सिनेरियोज होते हैं वो भी फिर हम अपडेट करते हैं कि अच्छा अगर हमने ये परफॉर्म किया था तो ये भी हमें चेक करना है। बिकॉज आफ्टर writing all test cases for whole the functionality, now you have the proper idea how the application going to work, how it functions. So आपको अब इस एप्लीकेशन का पूरा आइडिया है। ठीक है, अब आप इसके बारे में टेस्ट केसेस लिख रहे हैं, तो उसके बाद when you execute them तो आपको उसका रियल टाइम भी एक्सपीरियंस होता है कि अच्छा इसके बाद भी हम ये टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। हम टेस्ट केसेस शीट को अपडेट करते हैं कि ये टेस्ट केसेस भी हमें चेक करना है, क्योंकि sometimes we are performing testing, we found some test cases which are not written into our test cases, so we update our test document so we can check the test cases in our next test cycle execution. ठीक है, so this is the process which we use in test case development phase. सो आपको टेस्ट केसेस राइट करना ये मेन टेस्टर पार्ट है, ये आपको आना चाहिए। मे बी यू आर मैनुअल टेस्टर और ऑटोमेशन, यू हैव टू गुड टू राइट द टेस्ट केसेस। और टेस्ट केसेस आपकी एनालिटिक स्केल और लॉजिकल स्केल पे डिपेंड करता है, हाउ मच यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि एक लेवल ऑफ सेट में तो कोई भी सोच सकता है, आपको हमेशा अपोजिट सोचना है। जो जैसे कि डेवलपर्स और अदर टीम मेंबर एक पॉजिटिव फ्लो सोचते हैं क्योंकि उन्हें डिलीवर करनी होती है एप्लीकेशन, बट एज अ टेस्टर यू ऑलवेज थिंक हाउ टू ब्रेक इट, क्योंकि अगर एप्लीकेशन में कोई ब्रेक डाउन आना है या कोई डिफेक्ट आना है तो वो बेटर है कि टेस्टिंग फेज में ही आ जाए। बिकॉज अगर वो आता है प्रोडक्शन पे तो सबसे ज्यादा मोर रिस्पॉन्सिबल कौन होता है उसके लिए, टेस्टिंग रिसोर्स। So you have to more careful when you are finalize any build any application, वो defect free हो और it is should always come in a stable state. कोई मेजर कॉज या मेजर डिफेक्ट फाइंड नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन पे। माइनर इश्यूज एक्सेप्टेबल होते हैं, लाइक यू आर some text, some grammatical mistake or the minor thing are not working, सो उसे फिर भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। बट अगर कोई मेजर चीज आपसे मिस हो गई है, कोई मेजर रिक्वायरमेंट मिस हो गई है, सो द क्यू एंड द टेस्टर इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ओके, सो कभी कभी इसके चक्कर में आपकी जॉब भी जा सकती है, सो यू ऑलवेज श्योर अबाउट इट।
सो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको लॉजिकली थिंक करना पड़ता है आफ्टर रीड द डॉक्यूमेंट कि हाँ हमने सारी फंक्शनलिटी कवर की है, और इसके इनवैलिड आउटपुट्स के साथ यानी नेगेटिव टेस्टिंग हम परफॉर्म करेंगे तो उसमें एप्लीकेशन कैसे वर्क कर रही है। हमें हमेशा क्वालिटी क्या होती है, एप्लीकेशन की क्वालिटी होती है कि आप चेक कर रहे हो कि जैसे वो एप्लीकेशन लाइक इज सपोज टू बी वर्क वो वैसे वर्क कर रही है, ठीक है। बट अगर उसके साथ कुछ इनवैलिड इनपुट्स हो रहे हैं, कुछ इनवैलिड इनअप्रोप्रिएट एक्शन हो रहे हैं, तो वो उसमें भी सस्टेन करनी चाहिए एप्लीकेशन, वो उसमें भी अच्छे से वर्क करनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई इनवैलिड इनपुट उसमें किया है या कोई इनअप्रोप्रिएट एक्शन किया है, लाइक मैंने 10 बार क्लिक कर दिया, उसे डिफरेंट टैब्स में ओपन कर दिया तो मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो गई है। तो ऐसे एक्शन नहीं आने चाहिए। सो वी आर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो। डिफेक्ट निकालना है तो वो हम फंक्शनलिटी के लिए करते हैं, बट द क्वालिटी प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू गिव क्लाइंट, तभी वहां से उनका रिव्यू अच्छा आएगा। सो इट इज गुड फॉर यू, ठीक है। तो इस तरह से हम टेस्ट केसेस लिखते हैं। अब मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रही हूँ, ठीक है। वो आपको पवन सर को आज इवनिंग में सबमिट करना है। लाइक यू आर ऑल आर यूजिंग Amazon, सो आपको क्या करना है, आप एज ए गेस्ट यूजर Amazon पर आएंगे, यू एड एनी प्रोडक्ट फ्रॉम Amazon। सो आपको मुझे ये पहले आपको चेक करना है कि एज अ गेस्ट यूजर आप क्या क्या एक्शन इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। अब आपको टेस्ट सिनेरियोज लिखने हैं, टेस्ट केसेस लिखने हैं। हाउ टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम Amazon स्टोर एज अ गेस्ट यूजर। यस, हेलो। Yeah, who's asking? ओके, सो आपको क्या करना है एज ए गेस्ट यूजर, फर्स्ट आप चेक करेंगे कि अमेजोन में आप कैसे वर्क करते हैं, आपके पास क्या क्या है। जैसे अमेजोन में एज ए गेस्ट यूजर आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं या नहीं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपको एक असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ जिसमें आपको एज ए गेस्ट यूजर प्रोडक्ट परचेज करना है। तो उसमें आपको चेक करना है कि अमेजोन आपको फर्स्ट आप इसको गो थ्रू करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इसके व्हाट इज अमेजोन रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्योंकि इसका रिटर्न डॉक्यूमेंट तो हमारे पास है नहीं, तो आपको एक बार इसको गो थ्रू करना है एज अ गेस्ट यूजर आप क्या कर पाते हैं। फिर उन सब चीज़ों को जो टेस्ट स्टेप आपने लिए हैं, इसके लिए आपको क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड है, उसे आप लिखेंगे अपने टेस्ट केसेस में, ठीक है। तो आप बाय नाउ प्रोसीजर लिखेंगे एज अ गेस्ट यूजर फॉर अमेजोन, ठीक है। तो इसके टेस्ट केसेस का असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे पवन सर को आज। फिर कल मैं चेक करूंगी, पवन सर प्लीज पास मी द डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट। सो हम कल डिस्कस करेंगे कि आपको कितना समझ में आया इसके बारे में, क्योंकि कल हम आपको मैं कल आपको समझाऊंगी हाउ यू रिपोर्ट डिफेक्ट और डिफेक्ट बग लाइफ साइकिल। क्योंकि जब आप टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज में जाएंगे, आप अपने टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करेंगे, तो जब डिफेक्ट मिलेगी तो उसे आप कैसे रिपोर्ट करेंगे, तो वो मैं आपको एक जीरा पे आपको एक्सप्लेन करूंगी, जीरा टेम्पलेट के साथ कि हाँ हम जीरा में इस तरीके से डिफेक्ट्स रिपोर्ट करते हैं। But first, you have to learn how to write test scenario and test cases for any application. ठीक है? So आपको simply as a guest user buy now procedure लिखना है, इसके टेस्ट केसेस लिखना है। जितने आपको आ सके, जितना आपको समझ में आए, आप उसके अकॉर्डिंग लिखिए, बट ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं आपको ये फॉर्मेट शेयर कर दूंगी, इस फॉर्मेट के अंदर आपको लिखने हैं टेस्ट केसेस, ठीक है। या एनीवन आस्किंग? Okay, anyone have any doubt in any attributes of test cases? So we can discuss. You all clear what is test case ID, what is test scenario, what is our test objective and test cases, what is precondition. So मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। तो टेस्ट केस आईडी में आप स्पेसिफाई करेंगे एक यूनिक आईडी अकॉर्डिंग टू देयर मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल। टेस्ट सिनेरियो में आप जो हाई लेवल फंक्शनैलिटी है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद टेस्ट केसेस में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट केसेस लिखेंगे।
प्री कंडीशन में जो प्री रिक्विजिट रिक्वायर्ड है, प्री कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस टेस्ट केसेस वो मेंशन करेंगे। स्टेप्स में जो टेस्ट स्टेप्स रिक्वायर्ड है एग्जीक्यूट करने के लिए इस टेस्ट केस को वो स्पेसिफाई करेंगे। Then in test data, what input is required you mention in test data. फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, कि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि अगर ये टेस्ट केस हम परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, वो आप एक्सपेक्टमेंट में लिखेंगे। अब एक्चुअल रिजल्ट और पोस्ट कंडीशन और टेस्ट केस स्टेटस कब आता है आपका, जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूशन फेज। तो जो एक्चुअल रिजल्ट होता है वो हम एग्जीक्यूटिंग में लिखते हैं। आप लोग जब टेस्ट केसेस लिखेंगे तो आपके लिए आपका एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट सेम होगा, क्योंकि आपके पास अभी एक्सपेक्टेड है नहीं, आप गो थ्रू करेंगे साइट को और उसका एक्सपेक्टेड ही आपका एक्चुअल रिजल्ट होगा, ठीक है। और टेस्ट केस स्टेटस होगा पास और फेल। तो पास और फेल किस पे डिपेंड करता है, अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच करता है तो टेस्ट केस का स्टेटस पास होता है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच नहीं करता है तो टेस्ट केस का स्टेटस फेल होता है, ठीक है। सो ये इस तरीके से हम टेस्ट केस डॉक्यूमेंट डिजाइन करते हैं। So anyone have any doubt on any field, so you may ask. मैम या ज्योति से। जैसे हमारे पास बहुत सारी सब कैटेगरीज है, लाइक फर्स्ट कैटेगरी हमारी मेन वुमेन किड्स है, फिर वुमेन के अंदर भी सब कैटेगरीज आती हैं कि हाँ उनको क्लोथिंग में जाना है या ज्वेलरी लेना है, फिर उसके क्लोथिंग के अंदर भी सब कैटेगरीज है, तो उस कंडीशन में कैसे टेस्ट केसेस लिखते हैं? टेस्ट केसेस जैसे आप यहाँ अमेजोन पे गए, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज है। अब अमेजोन के लिए जब आप लिखेंगे ना तो आप इस कैटेगरी में गए, तो इसके लिए जो बनेंगे ना वो फर्स्ट बनेंगे जेनेरिक, क्योंकि यहाँ पे हम मोबाइल को मानेंगे इसकी कैटेगरी। तो मोबाइल पे क्या एक्शन होना चाहिए, व्हेन यू क्लिक ऑन द मोबाइल, सो ये हमें क्या शो करना चाहिए, इसकी सब कैटेगरी शो करनी चाहिए। Okay, like in mobile you can check there are n number of सब कैटेगरीज, ठीक है। तो इसके लिए क्योंकि ये जो सारी है ये सब है कैटेगरीज जो आप ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए जो लिखा जाएगा टेस्ट केसेस वो सबके लिए सेम होगा कि कैटेगरी पे जब आप क्लिक करते हैं या होवर करते हैं तो उसकी सब कैटेगरीज आपको विजिबल होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप जाएंगे मोबाइल एक्सेसरीज, आप एक सब कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं। फिर उसके बाद आप उस सब कैटेगरीज के किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो वो आपको कहाँ लेके जाएगा, स्टोर पे, जहाँ पे एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे। तो जब आपकी कुछ टेस्ट केसेस होते हैं जेनेरिक, तो यहाँ पे कैटेगरी को हम जेनेरिक लिखेंगे कि कैटेगरी पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, क्योंकि एज अमेजोन का एग्जांपल ही ले रहे हैं हम, तो अमेजोन में मल्टीपल कैटेगरीज हैं, तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि आप मोबाइल के लिए अलग टेस्ट केसेस लिखेंगे या फिर यहाँ पे जितने भी कैटेगरीज है, क्योंकि ये जेनेरिक फॉर्म हो रहा है, सबके लिए इसने एक सब कैटेगरी शो कर रखी है और उस पे क्लिक करने पे जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो सबके लिए सेम होगा, आपको स्टोर पे लेके जाएगा। देन यू क्लिक अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फिर वो उस पे शो करेगा, जैसे यहाँ पे इसने डील ऑफ द डे दे रखा है, बेस्ट डील। तो जो इसका फंक्शनल फ्लो होगा ना वो जेनेरिक है और वो सेम है, तो उसके लिए एक सेम बनेगा कि हाँ हम यहाँ पे अभी सिर्फ फ्लो चेक कर रहे हैं कि एप्लीकेशन ऐसे वर्क करेगी। बट अब मैं इस पेज पे आ गई हूँ, लाइक इट्स माय स्क्रीन, अब मैं यहाँ चेक करूंगी कि मेरे जो ये साइड पे हैं, साइड बार पे जितने भी फोटोज हैं इस इमेज के वो के शो हो रहे हैं, जो बटन्स हैं वो वैसे ही वर्क कर रहे हैं। तो ये सब मेंशन होगा इसके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पे कि अच्छा इस स्क्रीन पे ये फील्ड्स हैं। फील्ड स्पेसिफिक भी लिखे जाते हैं टेस्ट केसेस और फंक्शनल भी। फंक्शनल में जब हम लिखते हैं ना फ्लो चेक करते हैं कि अच्छा जब आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो व्हाट इट विल परफॉर्म, लाइक जैसे अभी मैंने फोटोग्राफ का बताया कि जब आप इस स्क्रीन पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या अपेयर होना चाहिए, वैसे कैटेगरी के लिए आएगा कि अगर आप इस ये सब इसकी कैटेगरीज है, इस पे क्लिक करेंगे तो सब कैटेगरीज विजिबल होगी, सब कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो वो उसके इनर स्टोर पे लेके जाएगा। तो इस तरह से हम उसमें फ्लो मेंशन करेंगे, ठीक है। Okay, so this is it for the session. Now you have the idea how to write the test cases and test scenarios for any application. So अब आपको एज ए गेस्ट यूजर बाय नाउ परचेज का टेस्ट केसेस मुझे कल पवन सर को आज इवनिंग तक सबमिट करना है, ठीक है। सो ट्राई टू राइट एटलीस्ट 10 टेस्ट केसेस
सो आपको आइडिया होगा कि कैसे लिखना है. मैं आपको ये फॉर्मेट शेयर कर दूंगी पवन सर को, तो दे विल डिस्ट्रीब्यूट इट. ओके. Yes, ma'am. ओके. सो enjoy your day, guys. Thank you, ma'am, once again. Thank you, sir. Okay, bye, guys. Bye. And thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Uh, Dear participants, we will again meet at 1 o'clock for Manish sir class. So please have a lunch. Thank you all.